Hello students, good morning. Students, today is 2nd December 2020. Your chapter 4 factors and multiples recapitulation was going on. Okay. Today I want to start the exercise 4. In the last class I explained examples related from exercise 4. So today I will start from question number 1. Okay. So find the question over has been given. Find the common factors and the HCF. B part, the numbers has been given 14 and 21. Okay. So look here, how can you solve it? In the question it has been given find the common factors. So it means you will find out the factor method. So factors of 14 यानी आपका 14 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. So you know about that students. 14 will be divisible by 1, 2, 7 and 14. Okay. And 21 will be divisible by 1, 3, 7 and 21. Okay. So common factors, here you will find out the common factors. So common factors here you can see 1 दोनों में है 1, then after that 7, nothing else. 1 और 7 के हमारे common factors हैं, therefore HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7. आप देख सकते हैं 1 और 7 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7 है. सो 7 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड द HCF. ओके. अभी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. वहां कॉमन फैक्टर्स दिया था, यहां क्या दिया है, प्राइम फैक्टर्स. ओके, प्राइम फैक्टर्स. And in this common factors has been given. So which method you will applicable here? Look here, the numbers has been given in the B part 9 and 15. Okay, so here you will write about that prime factors of 9 is equal to, then after that you will find about the prime factors of 15 is equal to 9 और 15 का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है. सो लुक हियर, हाउ कैन यू फाइंड आउट इट. आप इसको भी चाहे तो यहाँ रफ में निकाल सकते हैं. 9 है, 9 किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 से. 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3. सो 3 into 3. देन आफ्टर दैट 15 विल बी डिविजिबल बाई 3. 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5. सो prime factors of 9 is equal to 3 into 3 and prime factors of 15 is equal to 3 into 5. So you know about that what is the common factor. Here you will write common prime factors is equal to. So आप देख सकते हैं यहाँ 3 1 टाइम आया है, 2 टाइम आया है, यहाँ 1 टाइम आया है. सो हमारा 1 टाइम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. एंड 5 is not a common prime factor. So only one number you have got here. So this is your highest common factor. So here you will write therefore HCF is equal to 3. Clear students? Students, see the question number 3rd. Question number 3rd has been given. Find the HCF by finding all factors. आपको क्या फैक्टर्स सबके फाइंड आउट करने हैं और उसके बेस पर आपको HCF निकालना है. ओके. इन द A part the numbers has been given 20 and 30. So here you will find out the factors of 20. So here you will write factors of 20 is equal to, then factors of 30 is equal to. 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 किस किस नंबर से डिवाइड होता है हम इसे लिखेंगे. 1 से होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, देन 10, देन 20. यानी 20 हमारा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, देन 20 से भी हो जाएगा. Now you will find out the prime factors of 30 also. Okay, so 30 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, look here, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, then 5 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, then 10 से होगा, then 15 से डिवाइड होगा, then at last 30 से डिवाइड होगा. Okay, so here you have also find out the prime factors of 20 and 30. Okay, so what are the common factors here? Here you will write common factors is equal to, remember students आपको प्रॉपर वे में हेडिंग लिख के ही सॉल्व करना है.
डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप जब भी होमवर्क का सोल्यूशन भेजते हैं तो कई क्वेश्चंस आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, सो इट इज नॉट गुड। ओके, मार्क्स उसमें कंप्लीट नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्रॉपर वे में, प्रॉपर हेडिंग डाल के प्रॉपर वे में आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स आर हियर, आप देख सकते हैं 1 20 में भी फैक्टर्स और 30 में भी। 1 इज द कॉमन हियर, 2 ऑल्सो सेम, देन 5, then after that 10. Any other? No, I have not got the any other common factors of 20 and 30. हमको क्या नंबर मिले? 1 2 5 and 10. 1 2 5 10 are the common factors of 20 and 30, and इसमें highest क्या है? We have find out that number is 10. So therefore HCF is equal to 10. क्लियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमने सबका फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, देन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, देन आफ्टर यू कैन फाइंड आउट द HCF इन अ इजी वे। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सी द F पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, सो लुक हियर देयर आर द 3 numbers has been given, 22 33 and 44, एंड सेम मेथड यू विल बी एप्लीकेबल जो हमने आपको पिछले मेथड में कराया। सेम मेथड, इट मींस फैक्टर मेथड्स के बेसिस पर आप इसके HCF को फाइंड आउट करेंगे। इन ए पार्ट आई हैव सॉल्व 2 numbers HCF, नाउ हियर देयर आर द 3 numbers। सो लुक हियर हाउ कैन यू सॉल्व इट। सो फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 22, यानी 22 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 2 and 11। ओके, यानी 22 हमारा 3 एंड 22 ऑल्सो 22 हमारा क्या 4 नंबर्स जाएगा, 1 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, 2 से होगा एंड 11 से होगा, देन आफ्टर दैट 22 से होगा। नाउ यू विल राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 33। फैक्टर्स ऑफ 33 इज इक्वल टू 1 3 11 एंड 33। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 44। 44 will be divisible by 1 2 4 11 22 and 44. Okay, so there are the factors of 22 33 and 44. Now you will find out the common factors. So here we will write about the common factors. So common factors बेटा आप देख सकते हैं क्या है इसमें, 1 है, then 2 में है लेकिन 3 एक जगह नहीं, 33 का नहीं है, देन आफ्टर दैट 11 है and nothing else. It means common factors इसमें क्या है, 1 and 11. So here you can easily find out that what is the highest common factor here, 11. So therefore HCF is equal to 11. Okay, so on the basis of that everything, 2 numbers दिए हो, 3 numbers दिए हो या more than 3 numbers दिए हो, आपको अगर फैक्टर मेथड पर HCF फाइंड आउट करना है तो आपको इसी तरीके से आपको इसको यूज करना होगा। ओके, now students see the question number 4. In question number 4 it has been given find the HCF by the prime factorization method. It means आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए HCF फाइंड आउट करना है। Okay, so in the B part the numbers has been given 15 and 25. Clear student? So firstly we will find out the, look the solution. Firstly we will find out the prime factors of 15. Prime factors of 15 is equal to, then prime factors of 25 is equal to, यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको प्राइम फैक्टर्स 15 के फाइंड आउट करने हैं, देन आफ्टर दैट 25 के। सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। सो 15 यू कैन सी अबाउट दैट 15 विल बी डिविजिबल बाय लोवेस्ट नंबर 3 से जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 है जिससे 15 डिवाइड हो जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15, देन 5 से डिवाइड होगा, सो 5 1 ज़ा 5। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 into 5। क्लियर? देन अनदर नंबर हैज बीन गिवन हियर 25। सो 25 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इट विल बी डिविजिबल बाय 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो हियर वी हैव फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 into 5। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आफ्टर दैट सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर। आपको दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, नाउ यू विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, या कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए आप, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 नहीं है दोनों में, ओनली 1 में है, 5
हैज बीन गिवन हियर 1 टाइम एंड हियर 2 टाइम्स, सो 1 टाइम हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया. सो 5, only 5 is your common prime factors of 15 and 25. So therefore HCF भी क्या हो जाएगा, 5 only. ओके. हाँ, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हमें एक कॉमन फैक्टर में सिर्फ एक ही डिजिट मिला है, सो यही हमारा हाईएस्ट है. सो therefore HCF is equal to 5. Clear students? Now I will start G part. In G part you can see the numbers has been given 72 and 90. Okay. So we will find out the HCF say on the same pattern. It means prime factorization method के बेस पर आप फाइंड आउट करेंगे. So here you will write about the prime factors of 72 is equal to, then prime factors of 90 is equal to. So 72 और 90 का prime factors निकालेंगे. So look here. How can you find out? In the rough column we will find out 72. 72 students you can see it in the ones number 72 में क्या दिया, 2 दिया. So it means that will be divisible by 2. So आप 2 से 72 में डिवाइड करेंगे, so आपको क्या मिलेगा, 36. ओके. नाउ 36 में वंस नंबर क्या है, 6 है. सो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो 2 से आप 36 में डिवाइड करेंगे, सो यू विल गॉट 18. ओके. नाउ 18 यू नो अबाउट दैट. 18 2 से जाएगा, 9 है, 9 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 यू नो अबाउट दैट सिर्फ 3 से डिवाइड होता है. ओके. सो यू कैन सी अबाउट दैट यू हैव फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. इफ यू वांट टू चेक इट कि आपको सही फैक्टर्स मिले हैं या नहीं, सो यू विल मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. इट मीन्स यू हैव गॉट द करेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Okay. Now you will find out the prime factors of 90 because the another number has been given here, 90. So look here also about the prime factors of 90. In 90 the ones number is 0. आप 90 में देख सकते हैं ones number क्या है, 0 है. So 0 अगर होता है किसी नंबर के लास्ट में, so वो किससे 2 से डिवाइड होता है. Yes, I have already told that about the rule of the divisibility. अगर किसी नंबर के वंस डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी वंस प्लेस में हमारा क्या हो, 0 2 4 6 8. सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. ओके. सो 2 से आप 90 में डिवाइड करेंगे. सो अगर आपको डिवाइड नहीं है, सो आप रफ में डिवाइड भी कर सकते हैं. आई नो द डिवीजन. सो 2 से हमने 90 में डिवाइड किया, सो वी हैव गॉट 45. ओके. 45. नाउ यू कैन सी 45 में लास्ट में डिजिट क्या है, 5 है. इट मीन्स दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. 5 होने का कारण क्या, ये नंबर हमारा क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा. सो हम क्या चेक करते हैं, अनदर नंबर 2 के बाद क्या आता है, 3. सो 4 + 5 = 9. 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है. सो हमने 3 के डिविजिबिलिटी के रूल्स के थ्रू हमने से चेक किया कि 9 हमारा डिवाइड होता है 3 से, तो 45 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो कितना आएगा, 15. एंड 15 यू नो अबाउट दैट 3 से डिवाइड होता है, 3 5 = 15 एंड 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है. Okay, 5 1 = 5. Now you will multiply and check your prime factors are correct or not. 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 5 = 90. So your prime factors of 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5. Clear? So now common factors is equal to, सो आपको ये चेक करना है कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर कितने हैं या कौन कौन से हैं. सो हियर यू कैन सी 2 हैज बीन गिवन हियर 3 times एंड हियर 1 time. सो योर कॉमन फैक्टर 2. देन अनदर नंबर, अनदर कॉमन फैक्टर 3. यहाँ 2 times दिया है, यहाँ भी 2 times दिया है. सो इंटू 3 into 3. ओके. सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, आप यहाँ इंटू का यूज करें, हमने कॉमन फैक्टर्स लेकर के इंटू लगाने हैं. So 2 into 3 into 3. It means 2 3 = 6, 6 into 3, then 6 3 = 18. So HCF of 72 and 90 is equal to 18. Clear students? Now students see question number 5. Question number 5 has been given. Find the greatest number that divides 56 and 84 exactly. यानी क्या, आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो जिससे क्या 56 और 84 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. इट मीन्स देयर शुड बी नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर उसमें बचे नहीं.
So remember students, it means in that case you will find out the HCF, and HCF आप यहाँ बेटा कोई भी मेथड को आप एप्लीकेबल कर सकते हो here. Okay, so this is your thinking, but I think the division method is easy here. Prime factors method, prime factorization method or the division method is so easy here. So I will solve it here. So here you will write prime factors of 56 is equal to, ठीक है. Then another number has been given 84. So prime factors of 84 is equal to, so 56 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा और 84 का क्या होगा. लुक हियर, 56 हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. देन 2 से 28 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 14. 2 7 जा 14, देन 7 1 जा 7. Okay, so your prime factors of 56 is equal to 3 times 2 and 1 times 7. So here you will add 2 into 2 into 2 into 7. Now we will find out the prime factors of 84 also. Okay, so we have no space, so another हम रफ एक कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं और 84 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. So students you can see about that 84 हमारा किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. So 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Then 2 से 42 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. Then 21 you have got it. Okay, so 21 you know about that it is not divisible by 2 because the rule of the divisibility by 2 is if the ones number is 0 2 4 6 8, so that number will be divisible by 2, otherwise no. So here the number has been given 21. Okay, so 21 will be divisible by 3. 3 7s are 21. Then 7 you have got, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है, so 7 1 जा 7. So here you will write 2 into 2 into 3 into 7. Clear? So same pattern you will follow here. You will find out the common factors here. Okay, so common factors is equal to, you will write here कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ करेंगे क्या, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. सो कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 2 3 टाइम्स आया एंड 1 टाइम 7 आया. यहाँ क्या है 2 टाइम्स आया है एंड 3 आया 1 टाइम एंड 7 1 टाइम आया. सो आप देख सकते हैं 2 क्या है, 2 टाइम्स है. सो दीज आर द कॉमन. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 1 टाइम आया है दोनों में. सो नाउ देयरफॉर HCF आप क्या निकालेंगे इसका, 2 इंटू 2 4. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 7 जा 28. सो आपको HCF मिल गया 28. बट इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 56 एंड 84 एग्जैक्टली. सो यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर is 28 that divides 56 and 84 exactly. यानी क्या, हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 28 होगा, जो 56 और 84 को कंप्लीटली क्या डिवाइड कर देगा. क्लियर स्टूडेंट्स? Now students see the question number 6. In question number 6 it has been given find the greatest number that divides 28 and 49 without having a remainder. यानी क्या, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या बिना रिमाइंडर बचाए 28 और 49 को completely डिवाइड कर दे. So students you know about that in the previous question it has been asked about the divisibility. You can see it here. In the fifth question it has been asked about find the greatest number that divides 56 and 84 exactly, and here it is also based on that type of thing, divides 28 and 49 without leaving a remainder. So both are same. आपको इसमें भी HCF फाइंड आउट किया था, आप इसमें भी HCF फाइंड आउट करेंगे. लुक हियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज. सो आई वांट टू कंप्लीट इट आल्सो. ओके, सो लुक हियर. सो फर्स्ट थिंग, सेम मेथड वी विल फॉलो. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 first you will find out, then after that you will find out the prime factors of 49. Okay, so look here in the rough column we will solve it. 28 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. देन 14 आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 7 जा
14 एंड 7 से डिवाइड होता है. इट मीन्स आपको क्या मिला प्राइम फैक्टर्स 2 2 7. इट मीन्स 2 into 2 into 7. Now we will find out the prime factors of 49 also. So 49 you know about that students. 49 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है या 49 से. So 7 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7. So prime factors of 49 is equal to 7 into 7. So your common factors here you will write common factors is equal to common factors क्या factors is equal to here you can see 2 times आया but here नहीं है, यहाँ नहीं है. 28 का common factors में क्या है 2 times है but 49 में कोई factors नहीं है, 2 से related 2 नहीं दिया है. And 7 has been given in the prime factors of 28 one time and prime factors of 49 is 7 has been given 2 times. It means common factor क्या है 7 one time. So only the one number is here the common. So here you will add common factor is equal to 7. Okay. Therefore HCF is equal to 7. So you will write the answer. In the question it has been asked about the greatest number that divides. So here you will write the greatest number is 7 that divides 28 and 49 that divides 28 and 49 without leaving a remainder. Okay students. So students आज की क्लास में इतना ही. Your exercise number 4 has been also finished, has been also recapitalized here. Okay. If you have any doubt students, then you can also ask the query with me without any hesitation.